Yeah, good evening, students. Once again, I welcome you all to this third session of our account subject. Hope you all are safe and are at home and following what all I have requested to you all in the previous lectures. The students, today I received a number of messages from some of the students that सर थोड़ा हिंदी में भी बात किया करो, इंग्लिश हमको समझता नहीं है. So wherever necessary, I will speak in Hindi also for the better understanding of the students. Dear friends, today we will discuss about partnership. Our first chapter, Introduction to Partnership. We will be covering, as much as the time permit, we will cover the following topics in it: meaning and definition, features of partnership, types of partner, partnership deed and its content, provision of Indian Partnership Act 1932, and if the time permits, method of capital account. I will be teaching you from your textbook, which I had already sent to you. Now, friends, what does partnership mean? You see, partnership is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry on the business with a view to share profit or losses of the firm. एक अकेला आदमी अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता. इसके लिए दो या दो से अधिक पर्सन होने चाहिए. अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 की डेफिनेशन ये क्या बोलती है कि it is a relationship between person. It is a relationship between person who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये एक संबंध है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जिन्होंने ये एग्री किया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे. प्रॉफिट का मतलब लॉस भी होता है कि हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे और बिजनेस सब जने मिलके चला सकते हैं या उनमें से कुछ लोग एक्टिंग फॉर ऑल कर सकते हैं. तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब ये 1932 याद रख लेना बच्चों, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिलेट्स टू द ईयर 1932. तो आपको 1932 ईयर याद रखना है. 1 मार्क्स का ये कई बार वो पूछ लेते हैं. It is a relationship between person who have agreed. It is a relationship between person who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, अब इसके मेन फीचर्स अपन देखते हैं. इसके मेन फीचर्स क्या क्या है. पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला है एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनरशिप का ओरिजिनेशन एग्रीमेंट से होता है. ये एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. इट मे बी इन राइटिंग और इन ओरल, but it is preferred that it should be in writing. So in case of any dispute in the future, it can be produced as a evidence in the court of law. और जो लिखित में एग्रीमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. ठीक है, तो पार्टनरशिप इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कैन बी इन राइटिंग और इट कैन बी इन ओरल. It is better to have the agreement in writing so that in case of any dispute in future, it can be produced as a evidence in the court of law. और उस written agreement को अपन क्या बोलते हैं? Partnership deed. अब numbers of partners. पार्टनरशिप की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम क्या है? 2 व्यक्ति होने चाहिए. 2 persons are required. Minimum 2 persons are required. अब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं?
the maximum number of partners as per Companies Act can be 50. The maximum number of partners are 50 according to the Companies Act 2013. लेकिन जनरल बिजनेस में जो अभी पीछे तक था, जनरल बिजनेस में मैक्सिमम 20% हो सकते हैं और बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10% हो सकते हैं. ये एक अमेंडमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनती है, उसमें 50 व्यक्ति मैक्सिमम हो सकते हैं. अब बिजनेस क्या होना चाहिए पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि वो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ. मतलब आप स्मगलिंग के बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते, आप अफीम गांजा बेचने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते. बिजनेस लॉफुल होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी. मतलब कोई असंवैधानिक काम के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं. देन देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. अब ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं, ये इनका किस रेशियो में शेयर करेंगे? जिस रेशियो में ये चाहते हैं ये लिख सकते हैं या अपने ओरली डिसाइड कर सकते हैं कि हम प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर करेंगे. 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, तो 30-70 भी हो सकता है. वो जिस भी रेशियो में चाहें डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा गया नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट उनको बराबर बराबर शेयर करना है. कितना शेयर करना है? इक्वल 50. मतलब 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 पार्टनर हैं तो 25-25 सबका, 5 पार्टनर हैं तो 20-20 एंड सो. अनलिमिटेड लायबिलिटी. The liability of the partners is unlimited, joint and several. इसका क्या मतलब कि सपोज करो कभी फर्म बंद होती है या फर्म के लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एसेट कम होते हैं और फर्म के पास पैसा, सफिशिएंट पैसा या एसेट नहीं होते हैं कि वो अपने क्रेडिटर्स का भुगतान कर सकें. तो जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है वो तो यूटिलाइज होगी पे करने के लिए, लेकिन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा मंगाया जा सकता है. अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी के पार्टनर्स को उसका शेयर पे करना पड़ेगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से. If the assets of the business are not sufficient, their personal properties can be used to pay the firm liabilities. ये बात मैंने आपको समझा दी. अब रजिस्ट्रेशन. एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट महाराष्ट्र स्टेट में इसका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? आप फर्म को रजिस्टर कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, वो आपको फर्म का एक एग्जिस्टेंस का सर्टिफिकेट देता है, उसमें आपकी फर्म का नाम, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है. नेक्स्ट फीचर है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ईच पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. क्या मतलब कि फर्म के पास जो प्रॉपर्टी है ईच पार्टनर उसका को ओनर है. तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता. सब पार्टनर्स का प्रॉपर्टी में राइट होता है. फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट. पार्टनर्स की 2-fold कैपेसिटी है, प्रिंसिपल और एजेंट की. इसका मतलब क्या? जब एक पार्टनर आउटसाइड वर्ल्ड से डील करता है तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो पार्टनर क्या है? वो पार्टनर प्रिंसिपल है. लेकिन जब एक पार्टनर आउटसाइड वर्ल्ड से डील करता है वो अपने दूसरे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है. तो वो दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरे पार्टनर्स का वो क्या हुआ? एजेंट हुआ.
वो खुद के लिए तो क्या हुआ, प्रिंसिपल। जब वो दूसरे से डील करता है तो वो खुद मालिक है, प्रिंसिपल है, लेकिन वो दूसरों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरों पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, वो उनका एजेंट है। सो अ पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। द कैपेसिटी क्या है उसकी, प्रिंसिपल एंड एजेंट। फिर नेक्स्ट फीचर है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब बच्चों मैंने पहले दिन समझाया था, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद कर देना, उसके असेट्स बेच देना और लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाना। सो डिसोल्यूशन का मतलब द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन, इट असेट्स आर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। इफ अ पार्टनर्स want to close, they can by giving 14 days notice decide to close the firm. अच्छा, कुछ एक कंडीशंस ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाए। जैसे कोई पार्टनर पागल हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब बच्चों उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, उसके असेट कम है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो फटाफट से अपने क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, फिर पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, उसका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने चाहिए, और किस रेशो में शेयर करने चाहिए वो आपस में डिसाइड करेंगे। अगर आपस में उन्होंने डिसाइड नहीं किया है और पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बराबर बराबर करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स बुलाए जा सकते हैं फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। देन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जरूरी नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देता है जिसमें फर्म का नाम लिखा होता है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, हर पार्टनर बिजनेस में के मैनेजमेंट में पार्ट लेने का अधिकार रखता है और वो सारे एसेट्स का जॉइंट ओनर होता है, को ओनर होता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट की मैंने बात कर ली। फिर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब फर्म के बिजनेस को बंद कर देना। कुछ परिस्थितियों में फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कि कोई पार्टनर इनसेन मतलब पागल हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इन परिस्थितियों में फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है फीचर्स अपन ने देख लिए। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज एन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग terms and condition agreed amongst the partner. It contains the terms and conditions which are agreed upon by the, it can be in writing as well as it can be oral. But to avoid any dispute in the future, it is better if they are in writing. अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ होता है, इसके कंटेंट क्या क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। पहला है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। फर्म का नाम, फर्म का बिजनेस करने का कौन सा स्थान है और उसका बिजनेस क्या होगा, मतलब दाल का होगा, चावल का होगा, परचून का होगा, सीमेंट का होगा, उसका बिजनेस किस चीज का बिजनेस करेगी ये लिखा हुआ होता है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के नेम और एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं, और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितने समय के लिए है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप लिखी हुई होती है। ड्यूरेशन मतलब टाइम, कितने समय के लिए है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, जो 11वीं क्लास में अपन ने देखा था, अमाउंट ब्रॉट बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अमाउंट या गुड्स ब्रॉट बाय द बिजनेसमैन, असेट्स ब्रॉट बाय द businessman into the business is known as capital. तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, असेट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो किस किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ये उसमें
लिखा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है रेशियो इन विच द प्रॉफिट है, किस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो बराबर बराबर शेयर करेंगे। राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, हर पार्टनर्स का क्या राइट होगा, वो क्या क्या ड्यूटीज होगी उसकी, वो क्या क्या काम करेगा, और उसकी क्या क्या लायबिलिटीज होगी, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या लायबिलिटीज होगी, ये सब अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन। एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। नए पार्टनर को फर्म में दाखिला कराने को एडमिशन बोलते हैं। कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहे उसे रिटायरमेंट कहते हैं। किसी पार्टनर की फोटो पे माला टंग जाए उसे डेथ कहते हैं। तो एडमिशन के जब नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा तो क्या क्या रूल्स प्रोसीजर रूल्स अप्लाई होंगे, कोई रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, ये सब लिखा हुआ होगा। देन पार्टनर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किस किस पार्टनर को क्या क्या सैलरी, कितनी कितनी सैलरी दी जाएगी, किस प्रकार से कितना कितना कमीशन दिया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन मतलब बिजनेस बंद होना। अब जब बिजनेस बंद होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट को किस किस तरीके से सेटल किया जाएगा, कौन सा पार्टनर क्या क्या एसेट लेके जाएगा या एसेट बेचे जाएंगे, पूरी सब डिटेल बातें इस डीड में लिखी होती है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और कोई भी बात बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट हो ये भी लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। अगर भविष्य में इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर भविष्य में पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, WWF होता है, तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो अपने डिस्प्यूट्स का निपटारा कर सकते हैं। इसलिए एडवाइजेबल है कि ये रिटन में होनी चाहिए और ये सारे पार्टनर्स के द्वारा दस्तखत होने चाहिए। सब पार्टनर्स के ऊपर दस्तखत कर दे। अब देखिए पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वो आपस में क्या टर्म्स एंड कंडीशन चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपस में डिसाइड नहीं करी है और उनमें कोई विवाद होता है, उनमें कोई डिस्प्यूट होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। क्या होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधान रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कुछ डिसाइड नहीं किया तो क्या अप्लाई होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चों, अपन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किस किस को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ये वो प्रॉफिट, जब मैं प्रॉफिट बोलता हूं तो लॉस की भी बात होती है, किस किस को कितना प्रॉफिट या लॉस शेयर कैसे कैसे वो शेयर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो ये प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर से बटेंगे। 3 पार्टनर हैं तो 1/3 1/3 1/3, 4 हैं तो 25% सबको मिलेगा, 2 हैं तो 50-50 दोनों को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। यहाँ पे क्या है? अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। देखिए अगर पार्टनर ने अमाउंट को विड्रॉ करा तो जो भी पैसा होता है, पैसे की कॉस्ट लगती है, तो वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसके हम इतने % का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपस में कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो किसी की भी पार्टनर की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर मैं वापस ये बात समझाता हूं। देखिए अगर पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है, उसने उस पैसे का बेनिफिट लिया है, उसने पैसे का बेनिफिट लिया है ना,
तो जब उसने पैसे का बेनिफिट लिया है तो उसको उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि तूने ड्राइंग करी तो तेरे को इतना इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, तो उस केस में एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जा सकता। अच्छा, अगर पार्टनर ने 1 जून को, अगर डेट दे रखी है आपके पास, पार्टनर ने 1 जून को पैसा विड्रॉ करा, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक का, तो उसने अगर जून में विड्रॉ करा, 1 जून को विड्रॉ करा, तो वो पैसा 10 महीने के लिए काम में लिया है, तो उसको 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर कोई डेट नहीं दे रखी है कि पार्टनर ने ये पैसा कब विड्रॉ करा, तो फिर जो उसका अमाउंट है, रेट है, उसको एवरेज 6 मंथ का कैलकुलेट किया जाता है इंटू 6/12। ये अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लोन का क्या मतलब? पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, अब फर्म को और पैसा चाहिए, फर्म को क्या है, और पैसा चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो पार्टनर अपने पास से एक्स्ट्रा पैसा देता है। उसको कैपिटल नहीं मानते, उसको लोन मानते हैं। वो आपस में डिसाइड करते हैं ये कैपिटल नहीं है, ये लोन है। अच्छा, अगर उसने पैसा दिया है तो फर्म को उसको उसकी कॉस्ट कंपनसेट करनी चाहिए, उसका कोई मुआवजा देना चाहिए। तो वो जो आपस में डिसाइड करते हैं उस हिसाब से उसके लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना, 6% पर एनम। कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा। पार्टनर, अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, वो आपस में डिसाइड करेंगे कि इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, फर्म को उसका फायदा हो रहा है, तो फर्म को कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट इज साइलेंट। तो मतलब पार्टनर, अगर उन्होंने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनर को फिर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर लोन होगा तो वो बोलती है 6%, एक्ट बोलता है 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो, लेकिन कैपिटल पे वो मना करती है। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, अगेन आपस में डिसाइड कर लो। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, किसको क्या दिक्कत है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, ये एक्स्ट्रा काम करता है, इसको सेल्स पे या कोई और तरीके से इतना कंपनसेशन मिलेगा, या कोई और तरीके से इसको अलाउंस मिलेगा। वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं, और डीड में लिखा हुआ गया है तो सब उस पर राजी हैं, तो उस हिसाब से उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कोई भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर एडमिशन किस तरीके से होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि नो न्यू पार्टनर, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। इसको और अच्छी तरह से समझ ले, 5 पार्टनर है, 5 में से 4 राजी हैं और 1 राजी नहीं है, एक तो वो नया आदमी कबूल नहीं है। तो ये कोई डेमोक्रेसी से डिसीजन नहीं होगा। नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगती है। मेजॉरिटी या डेमोक्रेसी रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। समझ में आई बच्चों? तो ये से सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन 6 हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रोविजन है तो उस हिसाब से, प्रोविजन नहीं है तो बराबर बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रोविजन है तो, अगर उनके पास एग्रीमेंट है तो उस हिसाब से, एग्रीमेंट नहीं है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर उन्होंने आपस में डिसाइड करा है तो उस हिसाब से मिलेगा, डिसाइड नहीं किया है तो एक्ट बोलता है 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपस में डिसाइड करा है तो उस हिसाब से, अगर नहीं डिसाइड करा है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपस में डिसाइड करा है उस हिसाब से सैलरी और कमीशन मिलेगा। आपस में डिसाइड नहीं करा है या पार्टनरशिप एक्ट डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एक्ट के हिसाब से कोई कमीशन, सैलरी पेबल नहीं होती है। ध्यान, एडमिशन, नए आदमी को सबकी कंसेंट से ही एडमिट किया जा सकता है। सबसे मतलब सारे के सारे एग्री होने चाहिए,
ये मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप ऑल आर फॉलोइंग मी। कोई दिक्कत हो तो प्लीज, लास्ट में भी बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूं, आप मेरे को मैसेजेस करिए, आपके मैसेजेस का जवाब दिया जाएगा। मैटर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मैटर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, अपन ने लेजर अकाउंट बनाना सीखा था 11वीं क्लास में। लेजर अकाउंट में अपन ने प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाया है, मतलब अपन किस किस तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल्स की कैसे कैसे पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, किस तरह से अपन खाता, किस तरह से लेजर अकाउंट रखते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रखने के बच्चों दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बड़े आराम से अपन इन दोनों मेथड को समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। कैपिटल अकाउंट रखने के दो तरीके हैं, एक फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड क्या होता है? देखिए, पहली बात समझिए, जब कैपिटल अकाउंट पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करेंट अकाउंट। अब ये क्या क्या होता है? फिक्स जो कैपिटल अकाउंट है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? उसका परमानेंट कैपिटल रहता है, मतलब पार्टनर जो डिसाइड करता है कि ये इसे मैं बार बार निकालूंगा नहीं, इस अकाउंट को जब ही छेड़ा जाता है जब या तो परमानेंट रिडक्शन हो या परमानेंट एडिशन हो। एग्जाम्पल, पार्टनर ने 1 लाख रुपया दिया तो इस अकाउंट में 1 लाख रुपए की एंट्री कर ली जाएगी। अब पार्टनर जैसे ड्राइंग करता है तो वो इस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, मैं आगे से और विस्तार से समझाऊंगा। इस अकाउंट में केवल जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो आएगा, या परमानेंट एडिशन, उसने एक बार 1 लाख रुपया दिया, बाद में वो 25,000 और देता है, परमानेंट एडिशन करना चाहता है, तो 25,000 रुपया इस अकाउंट में लिखा जाएगा बच्चों। अगर पार्टनर ये डिसाइड करता है कि मैं 40,000 परमानेंटली लेके जाऊंगा तो 40,000 उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसमें जो कैपिटल वो डिसाइड करता है कि ये परमानेंटली मेरे बिजनेस में रहेगी, इस कैपिटल अकाउंट में केवल वही हिस्सा आता है जो वो फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब नहीं करता है। परमानेंट पोर्शन ऑफ द कैपिटल आता है, परमानेंटली या तो वो ऐड करता है या परमानेंटली रिड्यूस करता है, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आते। डे टू डे ट्रांजेक्शन का क्या मतलब बच्चों? पार्टनर कुछ ड्राइंग करेगा, वो इस कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो इस अकाउंट में नहीं आएगा। पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा, वो इस अकाउंट में नहीं आएगा। पार्टनर को कुछ सैलरी दी जाएगी, वो इस अकाउंट में नहीं आएगी। पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, वो नहीं आएगा। पार्टनर को ब्रोकरेज दी जाएगी, वो नहीं आएगी। पार्टनर को उसके प्रॉफिट का या उसके लॉस का हिस्सा दिया जाएगा, वो नहीं आएगा। तो फिर बच्चों आप मेरे से पूछोगे कि ये कहाँ जाएगा? अगर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो पार्टनर के साथ इनजस्टिस होगी, पार्टनर के साथ गलत होगा। तो उसका जवाब है पार्टनर के साथ हम अकाउंटेंट हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। तो प्यारे बच्चों, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो डिसाइड करते हैं कि फिक्स रहेगा तो दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में परमानेंट फिक्स पोर्शन ऑफ द कैपिटल लिखेंगे और करंट अकाउंट में डे टू डे ट्रांजेक्शन, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया, फिर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ करा तो डेबिट। जो भी पार्टनर को दिया जाएगा उसको क्रेडिट होगा, जो भी पार्टनर लेके जाएगा पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो पार्टनर से पैसा लेंगे, पार्टनर को डेबिट करेंगे। फिर अगर लॉस होगा तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। फिर इस साइड की टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड मतलब इस साइड मतलब क्रेडिट साइड।
क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाएंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड को माइनस करेंगे और जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे और बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट जो बैलेंस निकल के आएगा वो डेबिट होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो क्रेडिट होगा। ये चीजें अपन 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद अब है, पहला अपन ने फिक्स कैपिटल अकाउंट समझा, अब नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैटर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल में अपन ने देखा एक परमानेंट पोर्शन का अकाउंट था, वो फिक्स रहता है। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या है? द कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। इसमें जो कैपिटल बैलेंस होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। परमानेंट पोर्शन भी इसमें आएगा और डे टू डे ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको अभी समझाए थे वो भी इसी एक ही अकाउंट में आएंगे। तो दोनों अकाउंट की ये क्या है? खिचड़ी है। दिस इज एन मिक्सचर ऑफ बोथ द अकाउंट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इट इज, अब इसमें क्या क्या आएगा देखिए। जो पार्टनर का बैलेंस है, अगर दूसरा तीसरा साल होगा तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। पिछले साल का क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आएगा, डेबिट बैलेंस है तो इधर आएगा। फिर वो जो एडिशन, परमानेंट एडिशन करता है वो भी यहाँ पे आएगी। जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के ऊपर वो भी यहाँ आएगा। सैलरी भी दी जाती है यहाँ आएगी, उसका प्रॉफिट का शेयर भी यहीं पे आएगा। फिर अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट यहाँ पे लिखा जाएगा। वो जो ड्राइंग करता है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसकी ड्राइंग के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो भी यहाँ पे लिखेंगे, और अगर उसका लॉस का शेयर है वो भी इधर लिखा जाएगा। फिर अपन इसकी बैलेंसिंग करेंगे, इधर की टोटल करेंगे, उसमें से ये टोटल माइनस करेंगे। क्रेडिट टोटल बड़ी है तो बैलेंस को यहाँ लिखा जाएगा। अगर इसके अपोजिट, अगर डेबिट टोटल बड़ी है तो बैलेंस को यहाँ लिखा जाएगा। और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस, फिर डेबिट टोटल ज्यादा है तो वो इधर लिखा जाएगा और नेक्स्ट ईयर अपन नए साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको समझाया था। अपन ने क्या क्या डिस्कस करा इस लेक्चर में, मीनिंग करे, फीचर्स करे, पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट करे, और कैपिटल अकाउंट के मेथड करे, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देखे। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर अपन देखते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर आपकी नई बुक में नहीं दिए हुए हैं अभी, वो आगे आएंगे तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। कोई आपकी डाउट्स हो, समस्याओं हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, काइंडली मैसेज मी, आई विल आंसर ऑल योर मैसेजेस। और कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो रही हो आपको तो काइंडली पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अपन लोग। तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए और अपने स्किल्स को, अपनी एक्स्ट्रा चीजों को डेवलप करते रहिए। थैंक यू।